नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि आज करनूल के सुनैना ऑडिटोरियम में मौलाना आज़ाद डे तकरीब का इनेकाद बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ़ सियासी क़ायदीन, तालीमदा, दानिश्वर हज़रात और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन पार्लिमान डॉक्टर संजू कुमार ने अपनी बेहतरीन तकरीर में मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी और मुसलमानों के किरदार पर बेहतरीन तकरीर की और तलबा और तालिबात से अपील की कि वो अपने अपने तौर पर तालीमी मैदान में आगे बढ़ते हुए अपनी कौम को, अपने ज़ात को, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उन्होंने तालीम निस्वां पर काफ़ी ज़ोर दिया। साथ ही साथ रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने भी अपनी तकरीर में 4% रिजर्वेशन की अहमियत और YCP ने जो मुस्लिम अक़लियतों के साथ सलूक किया है, यानी अच्छा जो सलूक किया है, उस पर रोशनी डाली। इस मौके पर जॉइंट कलेक्टर ने भी काफ़ी बेहतरीन तकरीर की। आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो प्रोग्राम के आखिर में तलबा को इनामात से नवाजा गया और मुझ नाचीज़ सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी को भी अल मेवा की जानिब से एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन रुकन असम्बली करनूल के हाथों दिया गया। आप देखिए ये रिपोर्ट। Urdu అనే వర్డ్ ఇట్ మీన్స్ ఆర్మీ. ఒరిజినల్ ఇండియాలో పరీక్ష స్టార్ట్ అయింది ముస్లిం రూలర్స్ ఉన్నప్పుడు. హిందుస్థానీ హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. సో పర్షియా హిందుస్థానీ లాంగ్వేజ్ రెండు కలిపి ఉర్దూ వచ్చింది. వెన్ వాజ్ ఉర్దూ వర్డ్ కైండ్ 1898. ఆ 10-15 ఇయర్స్ తర్వాతనే ఖురాన్ ఉర్దూలోకి అనువదించారు. So Urdu is the Indian language. Urdu is not a foreign language. Persia is a foreign language, but Urdu is a Indian language. మరి ఇంతమంది ఉర్దూ మాట్లాడుతున్నారు ఇండియాలో. యాక్చువల్లీ ఇండియన్ ముస్లిం పాపులేషన్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 15.5%. మరి 15.5% ప్రైమరీ లాంగ్వేజ్ ఉర్దూనా కాదు. ఓన్లీ 8% ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ స్పీకింగ్ ఉర్దూ. మరి ఎందుకు ఉర్దూ తగ్గిపోతా ఉంది? మన స్కాలర్స్, మన మేధావులు, మన నాయకులు ఏం చేస్తున్నారు? Urdu is Indian language. Why it is decreasing? Why in importance? And it is considered as a national language, official language. In nearly 8 states, మన ఏపీలో కూడా official language. తెలంగాణ, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, జార్ఖండ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఇక్కడంతా కూడా official language. మరి మిగతా రాష్ట్రాలు ఎందుకు లేదు? ఎందుకు ఉర్దూ తగ్గిపోతా ఉంది? అట్లాగే రెండో అంశం లిటరసీ రేట్. లిటరసీ ఏంటి? able to read and write. చదవడం రాయడం వస్తే లిటరసీ రేట్ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఇండియాలో లిటరసీ రేట్ ఎంత? 73%. మరి ముస్లిమ్స్ లిటరసీ రేట్ ఎంత? 69%. వై? ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు ఇన్స్పైర్. ముఖ్యంగా ఇక్కడ అమ్మాయిల స్త్రీలు వచ్చారు కాబట్టి, స్త్రీ శక్తి సమాజంలో ముఖ్యమైన స్త్రీ శక్తి కాబట్టి మీరు మీ పిల్లలను, మీ బంధువులను, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా మోటివేట్ చేసి అందరూ బాగా చదువుకోవడానికి మీరు ప్రోత్సహించాలని చెప్పి నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సమాజం ఒకరు అనగారిన వర్గాల నుండి ఒకరు ఉత్తమంగా ఉంటే సమాజం బాగుండదు. సమాజం బాగుండాలంటే అందరూ సమానంగా బ్రతకాలి, అందరూ చదువుకోవాలి. ఈ సభాముఖంగా నేను మహిళలకు కోరుకుంటున్నా, మీరు దయచేసి మీ ఇళ్లలో ఎడ్యుకేషన్ విశిష్టత గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేయండి. మీ అమ్మ నాన్న మీకు చదువు స్టాప్ చేయండి. ఇక్కడితో కూడా మీరు వాళ్ళతో కొట్టాలైనా సరే మరి చదువు ముందుకెళ్ళండి. చదువు లేనిదే ఈ సమాజం ముందుకు పోదని చెప్పి మనం గ్రహించాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. అట్లాగే యూనో హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వరల్డ్? నియర్లీ 6,800 లాంగ్వేజెస్ ఆర్. Honorable Karnal Parliament Member Dr. Sanjeev Kumar Sahab, Parliament Senior MLA Ali Janab Khalsa Farooqi Sahab, करनूल कॉर्पोरेशन के मेयर आदि जनाब दीगर हमारे साहब, करनूल डिस्ट्रिक्ट के जॉइंट कलेक्टर रामचंद्र रेड्डी साहब, महबूब पाशा साहब, दीगर उलमा इकराम, मशाइख इकराम,
कॉर्पोरेटर्स, यहाँ पर आए हुए सारे बच्चे बच्चियों को, सारे हजरात को सलाम अलैकुम। आज एक इम्पोर्टेंट डे है। अगर हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखते हैं तो ब्रिटिशर्स जब हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को तोड़ने की बात कर रहे थे तो अबुल कलाम आजाद जोड़ने की बात कर रहे थे। ये अबुल कलाम आजाद की सोच थी कि हिंदुस्तान में सब लोग मिलजुल के रहना है। ये किसी एक मजहब का या किसी एक आदमी का या किसी एक जबान का या किसी एक चीज का नहीं है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल ग्रेट नेशन है जो सारी दुनिया में एक मिसाल कायम कर सकता है, क्योंकि इतने लैंग्वेजेस हैं, इतने रिलीजन्स हैं, इतने अलग अलग कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं। तो ये सबका है, ये हर एक का है, इसमें हम लोग सब मिलकर रहना है बोलकर उस जमाने में जबकि ब्रिटिशर जो है तोड़ने की बात कर रहे थे, अलग अलग करने की बात कर रहे थे, तहरीक चला रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ वो ईमान वाले बंदा मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। तो जो है आज हिंदुस्तान जिस तरीके से है तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वो ना सिर्फ एक अच्छे राइटर थे, जर्नलिस्ट थे एंड कम्युनल हार्मनी के इंडिया में एम्बेसडर। उनकी सारी जिंदगी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना और हिंदुस्तान को एक करना, हिंदुस्तान की एकता में ही भलाई है बोलकर बताना, इसी में गुजर गई। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। आज जितने IITs हैं, IIMs हैं, जितने JNTUs हैं या जो है जितने यूनिवर्सिटीज हैं, कई सौों की तादाद में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इंडिया के सारी दुनिया में माना जाता है कि इंडिया का एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतरीन है, तो वो वही एक ग्रेट थिंकर, फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट, जर्नलिस्ट मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की सोच थी, जिसकी वजह से आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है और उसका फकर है। उसी तरीके से उन्होंने जितना एजुकेशन के बारे में तवज्जो दी थी, जिस तरीके से अभी हमारे मौलाना मंजूर साहब भी बता रहे थे कि कुरान भी बताता है कि सबसे पहली चीज कोई चीज अगर बोली जाती, सिखाई जाती तो जो है तालीम पढ़ो, मगर अल्लाह ताला के कुरान में पढ़ो। उसी को लेकर मौलाना भी लेकर चले थे, जिसकी वजह से आज इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम हर गाँव तक भी पहुंचा है। तो उस जमाने की जो बीज थी वो आज इतना बड़ा दरख्त होके आज जो है इतने फल फूल और साया दे रहे हैं। उसी तरीके से क्योंकि आज ना सिर्फ माइनॉरिटी वेलफेयर डे है और नेशनल एजुकेशन डे भी है। आज आंध्र प्रदेश स्टेट में हमारे ऑनरेबल CM जगन मोहन रेड्डी साहब के क़यादत में जब से वो आए हैं, नाडू नेडू के स्कूल्स के जरिए पूरी स्कूल को चेंज कर दिए। आज बेहतरीन पानी, अच्छे बाथरूम्स, अच्छे टीचर्स, बोर्ड्स, बेहतरीन पेंटिंग्स, प्लेग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्स्ट बुक्स, ये सारी के सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ आज की दुनिया में अगर आपको नौकरी चाहिए या बड़ी सी बड़ी अगर आपको पढ़ाई पढ़ना है तो आपको इंग्लिश मीडियम जब तक नहीं पढ़ेंगे तो कोई आपको जो है मेडिसिन नहीं पढ़ सकते, इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, लॉ नहीं कर सकते, MBA नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने बड़े पढ़ाइयां हैं वो पूरे इंग्लिश मीडियम में। उर्दू एज ए मीडियम रखते हुए आपको इंग्लिश मीडियम भी पढ़ना चाहिए बोलकर बताते हुए आज हर गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम को लेकर आने वाली शख्सियत का नाम जगन मोहन रेड्डी साहब है। उनका बहुत बड़ा एहसान है आज के इस उम्र के बच्चों के ऊपर, ताकि वो पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत को जो है बता सकते हैं, कमा सकते हैं, जा सकते हैं, अपने कदमों पर ठहर सकते हैं। तो काबिलियत को पैदा करने के वास्ते जो सोच उस जमाने में मौलाना आजाद साहब की थी, आज उसी सोच को लेकर जो है जगन मोहन रेड्डी साहब चल रहे हैं, जिसकी वजह से इतने बेहतरीन स्कूल्स
नाडू नेडू में बने हैं, इंग्लिश मीडियम आया है। अम्मावाड़ी देकर कोई बच्चा जो है टायर पंक्चर की दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है, कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन के वैसा काम करने की जरूरत नहीं है, कोई किराने की दुकान पर जाकर बच्चा बैठने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाओ, मैं आपको अम्मावाड़ी देता हूँ, आपकी बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल देता हूँ बोलकर आज हाथ पकड़कर हमारे को आगे चलाने वाले इस कौम को, जब ये जो है सारा हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कोई भी रिपोर्ट देख लेंगे तो सबसे ज्यादा जो है अगर अनएजुकेटेड है तो वो मुसलमान है, तो बार बार बताया जाता है। तो इस कौम को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश आज हाली जनाब जगत मोहन रेड्डी साहब कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से स्कूल इंटरमीडिएट हो जाने के बाद में अगर आप कोई भी किस्म की डिग्री पढ़ने जा रहे हैं, आपकी पूरी की पूरी फीस जगन्नाथ विद्या दीवाना में, जगन्नाथ वसति दीवाना में दी जा रही है। बच्चों को जगन्नाथ गोरु मुद्दा बनकर बेहतरीन खाना खिलाया जा रहा है स्कूलों में। आज जगन्नाथ विद्या कानून का बोलकर लोगों को टेक्स्ट बुक से लेकर बैग से लेके कपड़ों से लेके स्कूल्स के शूज से लेके सॉक्स से लेके बेल्ट तक आज सर उठाकर कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई महिला कपड़ा पहन के गया या फट्टा कपड़ा पहन के गया, कोई अच्छा कपड़ा पहन के गया, कोई गरीब है कोई अमीर है बोलकर ये फर्क नहीं रहे सोचा, सबको 3 जोड़े कपड़े देकर आज जो है पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है काम किया जा रहा है कि वो लोग जो है कहीं पर भी एहसास कमतरी का एहसास नहीं हुए सोचा, वो लोगों के जहन को की साजिश करते हुए उनको आगे चलाने की कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से आज वेलफेयर डे भी है, तो माइनॉरिटीज का वेलफेयर पिछले 75 साल में आंध्र प्रदेश स्टेट की हिस्ट्री में कभी इतना नहीं हुआ था जितना इस बार हो रहा है। पिछले 3 साल में से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा घर अगर कभी कोई गवर्नमेंट में मिला है तो ये पहली गवर्नमेंट है, जबकि 30 लाख लोगों को घर दी है। तो उसमें सबसे ज्यादा गरीब तरीन तबका जो मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का है, वो सब जिस तरीके से हमारे एससी भाइयों में है, बीसी भाइयों में है, उसी तरीके से माइनॉरिटीज में भी सबसे ज्यादा गरीब तरीन तबका है। उन सबको जो है आज घर के पट्टे मिले। आज सबको जो है 18,000 मिलकर हमारे बहना जो है दूसरा कोई काम करे जो है वैसा चिंता दिया जा रहा है। उन लोगों को बदुकू के पैसे दिए जा रहे हैं, सुन्नावटी दिया जा रहा है। आज उन लोगों को अम्मावड़ी